गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए सभी हम यहाँ सिक्स्थ पैरे पे आ गए थे, ठीक है। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशी's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 9th of May, and I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakashi. अब क्या हुआ कि उसके बाद तो उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, ठीक है। इसने पैसे बचाए और उत्तराकाशी, जो कि एक माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहियों का जो कॉलेज है, उसमें वो एडमिशन ले लेती है। और जो उसका कॉलेज का जो सेमेस्टर है वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो होता है मई में ख़त्म, ठीक है। तो फिर वो घर नहीं जा पाई, तो उसने सीधा क्या किया, वो सीधा वहाँ चले गई, उत्तराकाशी चली गई। उसने अपना वहाँ पे एनरोलमेंट करवाया, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर. उसके बाद जो संतोष है वो हर साल मिशन पर जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड rapidly. Also she developed a remarkable resistance to cold and altitude. Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly, and the culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had slyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled at Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. And if her climbing skill, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concerns for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. तो अब क्या हुआ कि संतोष अब हर साल मतलब अपने मिशन पर जाने लगी, क्लाइंबिंग करने लगी, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसके अंदर है ना बहुत सारी एबिलिटी भी आ गई, जैसे कि अब वो मतलब उसको सर्दी, उसकी जो इम्यूनिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब उसने लोगों की मदद के कारण, ठीक है, लोगों की मदद करने की जो इच्छा है उसकी, उसने ना उसकी वजह से इसने जो पर्वतारोही है ना उनके दिलों में इसने अपनी पहचान बना ली थी, एक बड़े स्थान बना लिया था। और ये 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली लड़की थी, ठीक है, सबसे कम उम्र की लड़की थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the Santosh Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate. Had she not shared her ऑक्सीजन विद हिम। अब क्या हुआ कि 1920 में जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी तो उसका जो एक साथी है उसकी डेथ हो गई थी, उसकी मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन एक मोहन सिंह नाम का इसका साथी था, उसकी इसने मदद की और उसकी जान बचा ली, वरना उसकी भी वही हालत होती। Within 12 months, Santosh found herself a climber of an Indianapolis women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors of Padma Shri. अब क्या हुआ कि जो इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन है उसने उसको इनवाइट किया, और उसने दूसरी बार, संतोष यादव ने दूसरी बार जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया, ठीक है। और उसको भारत सरकार ने पद्म श्री का जो पुरस्कार है, जो बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world.
The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian, and also a fervent environmentalist. Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब क्या हुआ कि उन्होंने ये कहती है कि जो माउंट एवरेस्ट पर ना भारत का जो झंडा फहराना है वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो एक आध्यात्मिक जो अनुभव है वो है, ठीक है। पहले तो उसको थोड़ा सा उसने देखा कि इधर उधर देखा और ये प्राउड से भर गई, पूरे गौरव से भर गई, और फिर इसने अपना जो भारत का झंडा है उसको वहाँ पर गाड़ दिया, ठीक है। और वो एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट थी। इन्वायरमेंटलिस्ट होता है जो व्यक्ति पर्यावरण की देख रेख करता है, ठीक है। तो वो वहाँ से क्या किया, उसने 500 किलो जो कचरा वो वहाँ से उतार कर नीचे उसने फेंक दिया, ठीक है। यानी वो एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। तो क्लास आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख लेना। चलो आपने लिख तो लिए होंगे तो इसके याद कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके काम आएंगे, ठीक है। ओके क्लास, तो थैंक यू सो मच।